So, Taji, tell me something about yourself. Uh, Sir, I'm an enthusiastic person from Jhunjhunu district. I completed my graduation from Chidawa College, Chidawa. And after that, I did my MCA from University of Rajasthan in year 2005. And from 2005 to 2009, I worked in Infosys Technologies. And then after, for 3 years, I worked in Interglobe Technologies. Okay. What was the portfolio that you were looking after? So in Infosys, I was majorly into mainframe technologies, and it was a maintenance project for AT&T. And in Interglobe Technologies, it is actually a parent company of Indigo Airlines. So my portfolio was again for billing considerations, some enhancement which was required in the Indigo online check-in system. So precisely it was related to airline profile. Basically developing a customized platform for the aviation industry, right? I must be very precise in saying that it was a maintenance project, because most of the times in Indian industry, it is 85% times it is the enhancement in existing tools. So it can be debugging as well, and it can be giving a new dimension to existing features. So you were part of the developer team or the QC, quality control? Neither of the side. I was into enabling new technologies or enabling new features into existing software. I see. Very good. So, why do you want to come into administrative services then? Why not continue with your current job portfolio? क्योंकि software as a services sector, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि what do you think इंडिया के अंदर 3 sectors हैं, right? जी. कौन-कौन से हैं? सर हम उनको प्राइमरी सेक्टर में कृषि और खनिज को लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम उद्योग यानी इंडस्ट्रीज को लेते हैं, और टर्शियरी सेक्टर के अंदर हम सर्विसेज को लेते हैं. So, which is the major sector contributing to Indian economy? कौन सा major sector है? सर it is services. Okay, services sector है, और जो आप already services में काम कर चुके हैं, you are currently serving as well? No sir, I had quit my job in 2012 because of being a mother and my responsibilities. I thought it is better to take up one responsibility with full swing, and then in 2016 I started to restart my career. So this is how I landed here. 2016 के बाद आपने और कोई opportunities आई होंगी आपके पास? You tried to avail them? मैंने 2016 में जब मुझे लगा कि करियर रीस्टार्ट करना है, तो मेरे पास चॉइस में मैंने सबसे पहले सिविल सर्विसेज को रखा, बट एट दैट टाइम आई वाज 36 years of age, so I could not appear for UPSC, so I aimed for RPSC and I wrote RAS examination of 2016. I did not perform well. I secured 848 rank and did not get any service allocation. But in 2018 I'm sure that I shall be able to make it to the final recommendation list. Why the shift, Muktaji? Why from from being a core services major IT sector जो इतना contribute कर रहे हैं Indian economy को, वहाँ से आप shift किया आपने administrative services के लिए 2016 में? I understand that being a single mother is difficult. Being a mother is difficult. So आपने उसकी वजह से shift किया. I get that. लेकिन why not continue after that in services industry? Certainly, sir. I had a chance to go back to this same IT service industries, but at the same time, because when a lady becomes a mother, the sensitivity to child-related issues, sensitivity to women-related issues gets more value into daily life. And at the same time, it was a time when I could hear that Digital India campaign was going on, Jan Dhan Aadhar Yojana. So I thought, let me restart my career wherein I can show to other moms like me that yes, you can restart your career on a very good note. And this is a service that gives almost equal amount of payment and with social prestige. So I thought, I'm a person who has a fighting spirit. So I thought, let's hit the floor with the hardest possible strength. And that's how I'm here. आपके फैमिली में आपके हस्बैंड हैं और कौन-कौन हैं? I presume. सर मेरे हस्बैंड अभी मणिपाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और मेरा बेटा अभी 10 साल का है. Okay. और मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ भी साथ ही हैं हम. And आप झुंझुनू में रहते हैं?
Sorry sir, I could आप not get. झुंझुनू में ही रहते हैं, मतलब you're a resident? नहीं सर, मैं जयपुर में रह रही हूँ. Okay, with your in-laws. मैं जान सकता हूँ जयपुर के कौन से एरिया में आप रहते हैं? सर मैं सीसी रोड में रहती हूँ. ठीक है. Now suppose करिए आप जयपुर के उसी पार्ट के हम आपको बना देते हैं SDM, right? सर जी. I'm giving you a situational question now. जी सर. अब आपको मालूम है कि there was very heavy rainfall recently. Yes sir. So आपको, आप वहाँ पे SDM में आपको अपने ऑफिस जाने में प्रॉब्लम आ रही है, आप घर पे ही फंसे हुए हैं. Now you get two separate calls और multiple separate calls की काफी स्टूडेंट की बस फंस गई है गड्ढे के अंदर, काफी लोगों के जो लो लाइंग रीजन के अंदर घर थे वहां पे बारिश का पानी चला गया है, और पूरी तरह से जो रोड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो टूट चुका है. पानी बहकर फसलों के अंदर भी जा रहा है. मैं आसपास के गांवों की बात कर रहा हूँ. तो एक साथ आपके पास इतने सारे टास्क आ जाते हैं. Tell me, how are you going to manage that? So in this scenario which is given to me, I believe my presence can be at only one place. So the priority that I shall give is to reach to the closest possible place, which is, I mean, close to my house, first of all. And then secondly, simultaneously, while going from my house, I shall make it sure कि मैं उन contacts को phone करूं जो different locations पे fastest पहुंच सकते हैं, और with services like जो low lying areas में जो लोग फंस गए हैं वहां डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को इमीडिएटली पहुंचाया जाए, और उसके बिल्कुल पास वाले पुलिस स्टेशन में जरूर इस बात के लिए फोन किया जाए कि जो इमीडिएट राहत आप पहुंचा सकते हैं लोगों को इवैक्यूएट करने की, उसको प्रायोरिटी पे लिया जाए. और जहां मैं पहुंचने के लिए डिस्काइन कर रही हूँ वहां के लिए भी आई शैल मेक इट अ पॉइंट कि मैं उसके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है जो कि सिरसी में ही है उनको फोन करूँ, कहूँ कि आप भी सारे इक्विपमेंट लेकर पहुंचे, मैं भी पहुंचती हूँ. अगर आप सर्विसेज में आते हैं तो आप टेक्निकली क्या करेंगे अगर ऐसे डिजास्टर सिचुएशन आती है? तो हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प द गवर्नमेंट टू अचीव एनी डिजास्टर मैनेजमेंट? सर इसके लिए बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज ऑफ कोर्स अ रोल टू प्ले इन द करंट सिचुएशन. इसके लिए टू टाइप ऑफ स्ट्रेटजी विल बी अडॉप्टेड. एक तो करंट पोजीशन में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास सारे कॉन्टैक्ट्स हैंडी हों और सबको हम इन सिंगल कॉल पहुंच सकें. और लॉन्ग टर्म के लिए इट इज नेसेसरी कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों तक ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करें जैसे कि मे बी अ व्हाट्सएप ग्रुप, मे बी एन ऐप वेयर पीपल कैन सिंपली क्लिक ऑन और कॉल, and the call is not in a waiting line. It means multiple channels can be opted for the same number. And the second option would be like some very good policies have been implemented, some very good apps have been implemented by government, wherein if somebody burns, say somebody burns the wastage, so you simply click the photograph and the GPS will track location and team will reach there. So similarly same apps can be. ठीक है. आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यस सर. कौन सा? सर मैं दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ. अच्छा, तो आप दैनिक भास्कर के अंदर आज की हेडलाइन बताएंगे मेरे को? I'll take a minute to recall, sir. Please do. I'm sorry, sir. I'm not able to. I'm sorry. आजकल जो भी टॉप लीडिंग न्यूज़पेपर है उसके अंदर टॉप 5 कंट्रीज आ रही हैं कोरोना केसेस के मामले में, कोविड-19 केसेस जहाँ पे मैक्सिमम है. टेल मी इन डिसेंडिंग ऑर्डर जिसके अंदर मैक्सिमम केसेस में वो नंबर 1 पे, टॉप 5 कंट्रीज का नाम बताइए. So it's United States of America. Second is Brazil. The third one is India, and for the fourth, I can only guess because I looked up to only India where do we stand. It can be Russia, and for fifth, I'm sorry, no hints. Recently, वैक्सीन भी वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भी कोशिश करी जा रही है. मल्टीपल कंट्रीज आर ट्राइंग फॉर दैट. इंडिया एक कंट्री के साथ डील पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. रिसेंटली न्यूज़ में कौन सी कंट्री है वो? Sir, that is UK, because the vaccine is named as
Oxford Zeneca vaccine, and that is in the second and third phase, and even its final stage trial is happening in India. So we are eyeing to. मुक्ता जी, जो ट्रायल्स होते हैं, like what are the three different stages vaccine trial के? The vaccine trials are majorly categorized in two parts, and the second part has three stages. The first part is pre-clinical trials, in which the trials happens on animals, and the second is clinical trials. There are three stages in that. The first stage is very much limited to say some hundreds of people, and the second trial happens to a wider area covering almost all segments or all classes of population, like below 18 years of age up to मुक्ता जी, जो 40 क्लिनिकल years of ट्रायल्स age. होते हैं, जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके अंदर एक टर्म होता है प्लेसिबो ग्रुप. इसको प्लेसिबो इफेक्ट भी बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? I'm sorry, sir. I don't have any idea about it. Okay. Again, going to current affairs. हाल ही में इंडिया ने रफाल विमान लिए हैं, रफाल फाइटर जेट लिए हैं. कौन सी जनरेशन के प्लेन्स हैं? So if I'm not wrong, they are generation 5. Okay. उनसे एडवांस कोई प्लेन मौजूद हैं? Are there any more planes all over world में? So I don't think so. और हमने कौन सी कंट्री और कौन सी कंपनी से ये लिंक करी है? ये सर, ये डील हमने फ्रांस के साथ में की है, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम I'm sorry, sir, नहीं याद आ रहा है. इंडिया में जो डील कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इस डील को, do you have any knowledge about that? It was in news 2 years back. I believe it is a Reliance group. Probably Anil Dhirubhai Ambani group was there. Okay. It's just a guess, wild guess though, right? I think so, because if I'm trying to recall, the name comes into my mind. ठीक है, that would be all for me. PS ma'am, next interview आपका लेंगे. PS ma'am, over to you. Good morning, Mukta ji. Good morning, ma'am. I'm sorry, ma'am. I'm not able to hear you. Good morning, Mukta ji. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैम. थैंक यू. आप कैसे हैं? बढ़िया. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आर्टिकल 370 के बारे में पढ़ा है आपने? जी मैम. आर्टिकल 370 के लिए नेहरू जी ने एक बात बोली थी कि यह आर्टिकल घिसते घिसते घिस जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ. जी मैम. ठीक है. पहले और अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं? मैम, पहले जब ये आर्टिकल का प्रोविजन किया गया था, तो उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा था, और उनको ऐसा लगता था कि कश्मीर विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. सो इस आर्टिकल का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा. वो लोग ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे, और जैसे जैसे विकास होगा देश का, वैसे कश्मीर का भी विकास हो जाएगा. लेकिन जैसे हम देखते हैं, कुछ सेपरेटिस्ट जो पार्टीज आई, और जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप और खराब होते चले गए. तो हम देख रहे हैं कि 370 को लोगों ने अपने अस्तित्व के साथ जोड़ना शुरू कर दिया. तो कश्मीर के लोग अपने आप को भारत की मुख्य विचारधारा से नहीं मिला पाए थे. अभी उसका अस्तित्व यह है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया है, और भारत के संविधान के सभी बाकी उधर लागू हो गए हैं प्रोविजंस. क्या नफा और नुकसान है 370 के बाद? आपसे मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछूं, क्या नफा और क्या नुकसान है भारत को? सर, मैं इसका ना पलड़ा भारी देखती हूँ फायदों की तरफ. मैं सोचती हूँ कि यदि हम इस फिलॉसफी को माने
कि एक देश, एक विधान और एक निशान, और पूरे देश में जब इतना अच्छा विकास हो रहा है तो कश्मीर के लोग इस विकास की धारा से पीछे क्यों रहे हैं? हम पूरे वर्ल्ड हमने में सबसे अच्छे नंबर लेके चल रहे हैं। जी मैम। ये आपकी बात सही है, एक प्रधान एक विधान एक निशान हम लोगों ने पा लिया है। यस मैम। बट जैसा कि अभी कश्मीर को हम लोगों ने इसमें आर्टिकल 370 हटाकर अब दूसरे जी मैम। राज्यों से कश्मीर के बिजनेस जो करते हैं उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। जैसे कि अब दूसरे राज्यों के लोग आकर वहां बिजनेस करेंगे तो वहां कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्या इससे कश्मीरियों को नुकसान नहीं होगा? मैम मैं इस बात का उदाहरण के साथ एक प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं अपनी कंपनी की तरफ से कुछ इंस्टीट्यूशंस में गई थी इंटरव्यू लेने के लिए। तो वहाँ कुछ, मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली हरियाणा के कुछ इंस्टीट्यूशंस की और जयपुर के कुछ इंस्टीट्यूशंस की, जहाँ मैंने कश्मीरी बच्चियों से मुलाकात करने का मुझे सौभाग्य मिला। और मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप क्या डिफरेंस महसूस करती हैं, तो वो बताती हैं कि हमारे लिए देख करके आश्चर्यजनक होता था कि किसी भी चौराहे पर पुलिस नहीं खड़ी है, या हम 10 बजे भी घर से बाहर निकल पाते हैं, हॉस्टल से बाहर निकल पाते हैं। तो ये उनके लिए एक स्ट्रेंज फीलिंग थी फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। तो जब कश्मीर के लोग वहां से बाहर निकलेंगे, भारत की और लोग जगहों पे जाएंगे, तो वो इस परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे कि बिना आर्म्स के भी बहुत अच्छा जीवन जिया जा सकता है। और जब हम यहाँ के लोगों को उधर जाते हुए देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि सबसे जो परेशानी थी, जैसे जितने भी बड़े ग्रुप थे वहां जाके इंस्टीट्यूशंस नहीं बना पाते थे, इंडस्ट्रीज को नहीं बना पाते थे, तो उसमें ये आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370 मुख्य रूप से रोड़े के रूप में था। अब सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। पिछले साल हम देखते हैं कि वहां के गवर्नर की अध्यक्षता में इन्वेस्टर्स की मीट हुई थी, और उसमें भारत के सबसे बड़े ग्रुप रिलायंस ने और अदानी ग्रुप ने, दोनों ने ही कहा है कि वहाँ इंस्टीट्यूशंस भी बनाएंगे और इंडस्ट्रीज के लिए भी उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो आई एम श्योर अगर इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे तो डेवलपमेंट इज द ओनली की टू सेटिस्फाई ऑल पीपल। लोगों के पास काम होगा तो मुझे लगता है कि उनकी आतंकवादियों के जैसी जो मानसिकता है, जो मुड़ने का जो रुख है, वो रुख में परिवर्तित होगा और ज्यादा असिमिलेशन हो पाएगा। हमें ज्यादा अच्छे से हम उनको गले लगा पाएंगे। ओके ओके, एमपीलेट स्कीम के बारे में बताएं। मैम एमपी लेट स्कीम 2014 में शुरू की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो दोनों ही सदनों के सदस्य हैं, वो अपने अपने एरियाज में किसी एक उसका ग्राम का चयन करें और वहां पर अप टू 2 करोड़ रुपीस का कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल को वो सैंक्शन करवा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि जब से कोरोना का टाइम आया है, एमपी लेड स्कीम को सस्पेंड कर दिया गया है फॉर 2 इयर्स, और ये सारा का सारा धन कोरोना से फाइटिंग करने के लिए यूज किया जाएगा। ओके, अभी फिलहाल स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है, जी मैम। वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया है? मैम वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। क्लीनेस्ट सिटी का किसको दिया गया है? मैम वो अलग अलग कैटेगरीज में है। सिटी अबव 10 लैक्स पॉपुलेशन में इंदौर को, सिटी फ्रॉम 1 to 10 में if I remember it correctly, it is Mysore। और फिर स्टेट्स को भी दिया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ को दिया गया है सिटी अंडर 100 अर्बन बॉडीज, और फिर मोर झारखंड देन को दिया 100 गया है लोकल बॉडीज सिटी में किसको अबव दिया 100 है? बॉडीज। आई एम सॉरी मैम। मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज में किसको दिया गया है? मैम झारखंड को। आर यू श्योर? मोर देन 100 और लेस देन 100? आई एम सॉरी मैम, they have a tie between, मतलब positions are captured by these two states only. I need to go back and recollect my data. Chhattisgarh and Jharkhand are the top two states within these two categories, but I need to be very sure about it. I'm sorry. तीस्ता वाटर डिस्प्यूट किस किस के बीच में है? तीस्ता रिवर डिस्प्यूट मैम ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तीस्ता एक ट्रिब्यूटरी है टू ब्रह्मपुत्र रिवर, जो सिक्किम के पास से ओरिजिनेट होती है और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। अभी वाटर डिस्प्यूट के अलावा ये न्यूज में क्यों है? वाटर डिस्प्यूट तो ऑलरेडी है,
अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? Sorry, ma'am, I did not follow the current proceedings about it. Okay. मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती है? I'm sorry, ma'am. मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? Ma'am, it can be a wild guess if you allow me to, but and मैं इसको सोचती हूँ प्लासी के युद्ध से, जब ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को हराया था, उसके आसपास से। दो हिस्ट्री has उससे been out of my उससे पहले हाँ, उससे पहले के टाइम को मिडाइवल, उसके बाद को मॉडर्न क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैम बहुत बड़ा सांस्कृतिक और प्रशासनिक परिवर्तन आया था अंग्रेजों के भारत में आने के कारण। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर रहा है कि हम हिस्ट्री को दो भागों में बांट के सकें। जैसा कि अंग्रेज थे वो कहते थे कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे फूट डालो राज करो जैसा पॉसिबल है। तो क्या वो ऐसा कर पाए थे? क्या वो ऐसा कर पाए थे? जी मैम, वो कर पाए थे क्योंकि भारत के अगर दो टुकड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे दो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग सो। बट अगर आप ऐसे कहते हैं कि वो ऐसा कर पाए थे, तो 1857 के रिवोल्ट में हर जाति हर क्षेत्र के लोग ने पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पे इंडिया में यूनिटी भी दिखी थी। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम दूसरे एंड पे देखें तो यूनिटी के बावजूद 1857 का रिवोल्ट अनसक्सेसफुल कहलाएगा, क्योंकि हमारे ही यहाँ के जो राजा और महाराजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये फूट हो गई थी। राजा जो पहले इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी हुआ करते थे, अब वो इंटीग्रल पार्ट ना होकर के इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स हो गए थे। तो ये भी तो अपने आप में एक फूट डालो राज करो। फूट डालो और राज करो को सिर्फ हमें धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ना देख करके हमें अलग अलग स्थानों में देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सामंती व्यवस्था का जो टूटना है वो भी फूट डालो राज करो है, दो राज्यों को आपस में लड़ाना भी फूट डालो और राज करो है। तो ये ऑलमोस्ट सभी परिप्रेक्ष्य में था मैम। आतंकवाद की समस्या क्या है? टेररिज्म। मैम, टेररिज्म को अगर सिंपल शब्दों में डिफाइन किया जाए तो लोगों में भय का माहौल पैदा करना अलग अलग गतिविधियों के द्वारा आतंकवाद कहलाता है। और ये समस्या भारत के परिप्रेक्ष्य या वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य सभी में एक जैसी ही है। इसके बहुत सारे कारणों में हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल विल के लिए ऐसा करते हैं, कुछ लोग अपने धर्म विशेष का प्रचार या धर्म विशेष से संबंध कराने के लिए करते हैं, कुछ लोग इसको बढ़ावा इसलिए देते हैं कि वो दूसरे देश में अस्थिरता ला पाए। तो इसके बहुत सारे कारण हैं मैम, और इनफैक्ट यूथ में आने वाली जो इंस्टेबिलिटी या इनफैक्ट स्ट्रेसफुल माहौल है, वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि टेररिज्म से रिलेटेड हम हमेशा पाकिस्तान पे कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। रिसेंटली ओम बिरला जी ने भी बोला कि अभी उन्होंने मीटिंग में बोला कि जस्ट लाइक कि हर चीज में पाकिस्तान का ही रोल है इसमें, टेररिज्म में। सिर्फ डिस्कस करने से या फिर कुछ एक्शन लेने से कुछ काम होगा, या सिर्फ डिस्कस करने से बोलने से कभी वर्ल्ड लेवल पर इसकी सुनवाई हो पाएगी? मैम, मैं इस मामले में हमारे करंट प्रधानमंत्री जी का उल्लेख करना चाहूंगी। वो जिस भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में जाते हो, चाहे वो G20 की मीट्स में जाते हो, या इनफैक्ट एनवायरमेंट से रिलेटेड भी किसी मुद्दे पे जाते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि वर्ल्ड में दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, और वो स्पेसिफिकली दो चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या एनवायरमेंट करंट पोजीशन ऑफ एनवायरमेंट को बोलते हैं, और दूसरा वो कहते हैं आतंकवाद। वो हर एक लेवल पे बहुत बड़ी। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल लेवल पे भी एड्रेस इसको किया जा रहा है, और ISIS को कर्व करने में बहुत सारे देशों ने मिलकर के उसको कर्व किया है। भारत के स्पेसिफिक की बात करें तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। इसमें 370 का एब्रोगेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आतंकवाद की घटनाओं को कम करने के लिए। और जब भी हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटनाएं होती हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी सेना बहुत अच्छे से इसका जवाब देती है, और बहुत सारे
अभी ऑपरेशन क्लीन स्वीप भी चल रहा है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी किए अक्रॉस दी बॉर्डर्स। तो सिर्फ वाक से ही काम नहीं हो रहा मैम, धरातल पे भी काम हो रहा है। ओके, थैंक यू मुक्ता जी। मैं आपको नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव कर रही हूँ। थैंक यू मैम। सर आप बोलिए। हेलो। हेलो हाँ मुक्ता जी, कैसे हो आप? सर, थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू सी योर फेस। वीडियो ऑन नहीं है क्या? वीडियो ऑन है। हाँ, दिस टाइम यस सर। ओके। मुक्ता जी, आप झुंझुनू से बिलोंग करती हो। जी सर। झुंझुनू की वर्तमान की राजनीतिक दशा और दिशा के बारे में बताइए। सर, झुंझुनू में वर्तमान में एमपी श्री नरेंद्र कुमार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके अलावा जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ, पिलानी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर श्री जेपी चंदेलिया, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इनके है। अलावा झुंझुनू में झुंझुनू विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभा क्षेत्र आते हैं? सर 7। 7। कितनी तहसीलें हैं आपकी झुंझुनू में? सर 8। 8 तहसील। गुड। प्रियम्बल के बारे में बताइए कुछ। सर, प्रियम्बल को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले जो हमारी संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था। और मेजर जो हम आज के दिन जो देखते हैं हमारा प्रियम्बल, वो ऑलमोस्ट उसी से डिराइव्ड या उसी का बहुत सारा पार्ट है। ठीक है मुक्ता जी, प्रियम्बल को अपने शब्दों में बोलकर बताइए। शुड आई डिक्टेट ए वर्ड टू वर्ड और अपने शब्दों, मतलब प्रियम्बल हमारे, अगर मैं समझाना चाहूँ किसी को तो मैं कहूँगी प्रियम्बल हमारे संविधान का एक आईना है। अपने वर्ड्स में बताइए आप। सर, प्रियम्बल हमारे संविधान को देखने का एक थ्रू ग्लास है। और प्रियम्बल में वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो मूल रूप से हमें संविधान में देखने को मिलेंगी। संविधान के ये हमें व्यक्ति को दिए जाने वाली सभी लिबर्टीज और सभी प्रकार की जो उसको न्याय और समता, इन सब से रिलेटेड हमें रूबरू कराता है। और यहाँ रहने वाले सारे सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ा गाइडिंग फोर्स है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कौन सा पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो कौन सा होगा? सर, मैं इसको पार्ट 4 से रिलेट करना चाहूंगी, जिसमें सिटीजन्स को अधिकार दिए गए हैं। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नो सर, फंडामेंटल राइट्स। वो तो पार्ट 3 में है। देन आई एम सॉरी सर, पार्ट 3 की बात करना चाहूंगी सर। तो बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स सर, इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रायिकता अगर डिसाइड करनी हो तो मुझे लगता है कि नहीं, जबकि राइट्स को भारतीय संविधान में प्रियम्बल को तो भारतीय संविधान का दर्शन बताया गया है। जी सर। तो फिर इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स कैसे हुए? सर, फिर इसको मुझे लगता है कि इसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो उत्तर होगा ये होगी, यदि एक परिवार में 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, तो माँ और पिताजी के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। तो इक्वली सारे पार्ट इम्पोर्टेंट हैं। बट मेरी खुद की प्रायिकता में मैं सोचती हूँ कि ना, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो लार्जली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी सर। काफी न्यूज़पेपर में चर्चा में भी हो रही है। तो सर, वहां पर किन 2 राजनीतिक मुख्य दलों के बीच में अभी इस चुनाव की बहस शुरू हो चुकी है? सर, एक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। अच्छा, तो ये बताइए कि अमेरिका की जो शासन प्रणाली है और भारत की शासन प्रणाली, उसमें क्या अंतर है? सर, अमेरिका की शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल है, और भारत की
जो प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री जो है वो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। क्या और अंतर है दोनों में प्रमुख रूप से? सर दोनों में मूल रूप से अंतर ये है कि वहाँ रूल्स जो है ना वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, और यहाँ हमारे जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट लोकसभा के द्वारा में बनाए जाते हैं, कांग्रेस के द्वारा बनाए जाते हैं, जो वहाँ की संसद है? सर कांग्रेस के पास में प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए दिए गए जो आदेश हैं उनको टॉपल करने का अधिकार है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, तो अमेरिका में भी 2 सदन हैं। कांग्रेस के कौन कौन से हैं वो दोनों सदन? सर just a moment sir, I'll like to take a few seconds. So it's House of Republics and House of People. दोनों है, करेक्ट है आप। सीनेट तो नहीं है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट तो नहीं है। I'm sorry sir, ठीक है, it shall be a wild guess for me. ठीक है। I'm sorry. आप ये बताइए, EQ और IQ जी सर। में क्या बेसिक अंतर है? सर EQ इमोशनल क्वोशिएंट के लिए है और IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के लिए है। इमोशनल क्वोशिएंट के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि उसके अंदर इमोशंस को समझने की क्षमता, उनके अनुरूप अपने डिसीजंस को डिराइव करने की क्षमता और सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता शामिल है, जबकि IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट में बुद्धिमत्ता से रिलेटेड, जैसे ठीक कि है। मैथमेटिकल स्किल्स, तो कॉग्निटिव आप एबिलिटी। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में EQ का कैसे प्रयोग करोगी? और मुझे लगता है सर एक प्रशासनिक अधिकारी होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सामने वाले की परेशानियों को समझ पाएं। यदि हम समझ जाते हैं तो फिर हम उसके लिए समाधान ढूंढने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो इमोशनल क्वोशिएंट का ठीक है। ऊंचा होना प्रशासनिक अधिकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। आप ये बताइए कि अभी हाल ही में राजस्थान कुछ समय से एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, जी सर। तो क्या ये मांग सही है राजस्थान की? सर मैं इस मांग को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि हम अभी भी एजुकेशनली अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हम नीचे से दूसरे स्थान पर आते हैं वुमेन एजुकेशन में, और नीचे से तीसरे स्थान पर आते हैं, राज्यों की सूची में नीचे से तीसरे स्थान पर आते हैं ओवरऑल एजुकेशन में। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। इसके अलावा हमारी MMR और IMR दोनों ही बहुत हाई है, स्वास्थ्य पैरामीटर्स में भी हम काफी पिछड़े हुए हैं। औद्योगिक विकास में अभी हमें बहुत सारा काम किया जाना है। प्रति व्यक्ति आय में भी हम भारत तो औसत से बहुत पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि ऐसी मांग उठती है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, और उसे में अधिक फंड्स मिलेंगे सर। ठीक है। आप झुंझुनू से बिलोंग करती हैं? जी सर। जो एक शेखावटी क्षेत्र का हिस्सा है। जी सर। तो शेखावटी तो अपनी चित्रकला के लिए बहुत फेमस है। क्या क्या उसकी प्रमुख विशेषता है वहां की चित्रकला की? सर शेखावटी की चित्रकला को फ्रेस्को बुनो या आला गीला कहते हैं। ये गीले प्लास्टर के ऊपर की जाती है और नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये बताइए, फ्रेस्को बोनो और फ्रेस्को सेको में क्या अंतर है? सर फ्रेस्को बुनो में रंग गीले उस पे किए जाते हैं, जबकि फ्रेस्को सेको के अंदर रंगों का प्रयोग न होकर के गीले प्लास्टर को ही इस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है कि वो उभरा हुआ प्रतीत होता है और चित्र उसी में से निकल करके आते हैं। ठीक है मुक्ता जी। जी सर। मैं थैंक यू। मैं नेक्स्ट पैनल मेंबर का मूव करता हूं, एमके सर। थैंक यू सर। हेलो मुक्ता जी, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, थैंक यू सर, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। मुक्ता जी, अभी हाल ही में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया गया है और 26 जनवरी भी हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या आप बता सकती हैं कि दोनों में जो झंडा फहराने की जो रीति है उसमें क्या डिफरेंस है? दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, फ्लैग होइस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? जरूर सर। सर हमें जिस दिन स्वतंत्रता मिली थी उस दिन को हम 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। तो हम झंडे को नीचे से ऊपर खंभ के शीर्ष तक लेके जाते हैं, ये बताने के लिए कि आज से हम आजाद हैं। तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। जबकि 26 जनवरी को जब फ्लैग अनफर्ल किया जाता है तो वो फ्लैग से बंधा हुआ होता है, वो शीर्ष पे होता है और वहीं से उसको खोला जाता है। तो यानी फ्लैग का मूवमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप नहीं होता। ठीक है। आप ये बताइए कि इजराइल अरब पीस टॉक्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और कितनी ट्रीटीज हुई हैं उनके बीच में? I'm sorry sir, I did not follow that.
ओके, ठीक है। आप ये बताइए एनआरसी एंड सीएए में क्या डिफरेंस है? सर, एनआरसी स्टैंड्स फॉर नेशनल रोल ऑफ सिटीजन्स। तो उसमें शामिल होते हैं लोगों के ये लोगों की नामावली है जो भारत के सिटीजन कहलाए जाएंगे। इसका मेजर इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पड़ेगा। और जबकि इफ आई एम टेकिंग एट NCAA as National Citizenship Amendment Act, if I'm right, so we generally call it as Citizenship Amendment Act। ये भारत में भारत के जो पड़ोसी 3 राज्य देश हैं उनसे आने वाले 6 प्रकार के गैर हिंदू, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, इस प्रकार की कम्युनिटी के लोग जो वहां प्रताड़ित हो सकते हैं उनको भारत में सिटीजनशिप देने से संबंधित है। बट कुछ पार्टीज हैं, कुछ अपोजिशन लीडर्स हैं जिन्होंने एनआरसी एंड सीए दोनों का विरोध किया है और माइनॉरिटीज में भी इसको लेकर के काफी डर है। तो उनके क्या डर हैं, क्या एप्रीहेंशंस हैं, आप बता सकती हैं? सर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के माइनॉरिटीज में ये डर है कि कहीं उनकी सिटीजनशिप चली ना जाए। तो इस मामले में जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी की सिटीजनशिप लेने से नहीं, उनको ग्रांट करने से संबंधित है। तो जो ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं उनको इस मामले में कुछ सोचने की या डर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी जो लोग इन 6 धर्मों से या 6 पंथों को बिलोंग नहीं करते उनके लिए जो पहले रूट था वो रूट अभी भी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि सर इसमें ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों तक क्लियर इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेशंस करें। और जितना ज्यादा हम इनके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे उतने ही मुझे लगता है कि स्थिरता आएगी और लोगों से संवाद करना ज्यादा जरूरी है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि एनआरसी और सीए दोनों को लागू कर देना जो है, जैसा कहा जाता है और जैसा दिख भी रहा है, जैसा मीडिया में भी बात की जाती है कि हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने की ओर पहला कदम होगा? सर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो इसको एक बहुत पॉजिटिव स्टेप मानती हूँ कि जो भी जहाँ भी प्रताड़ित हो रहा है और वो धर्म के नाम पर यदि प्रताड़ित हो रहा है, तो हमारे बापू भी कहा करते थे और इनफैक्ट हमारे DPS में भी ऐसा प्रावधान है कि हम ऐसे देशों से आने वाले व्यक्तियों को सहर्ष स्वीकार करें, उनको देश की मुख्य धारा में शामिल करें और उनके बढ़ावे के लिए प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि इसको धर्म की भावना से उठकर मानवता से संबंधित देखना चाहिए। तो जैसा कि सीएए में बताया गया है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें जो माइनॉरिटीज हैं, लाइक जैसे पाकिस्तान में हिंदू हैं, अफगानिस्तान में हिंदू हैं, कहीं सिख हैं, तो माइनॉरिटीज वर्ड ही इसमें इंक्लूड कर देना चाहिए था। वाई इन्होंने क्यों सिर्फ और सिर्फ जो है जो वहाँ पे रिलीजन डिक्लेयर कर दिया है? अगर माइनॉरिटीज को माना जाए तो फिर श्रीलंका में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है एंड इसके अलावा नेपाल में मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो उनको क्यों सीएए में इंक्लूड नहीं किया है? सर, ये जो देश हैं जिनके बारे में हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ये तीनों देशों में ही ये अपने संविधान में अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि वो इस्लामिक कंट्रीज है। तो ऐसी बहुत प्रचुर संभावना है कि वहाँ गैर इस्लामी संगठनों के साथ या गैर इस्लामी पंथ को फॉलो करने वाले लोगों के साथ में भेदभावपूर्ण रवैया हो सकता है। तो इसलिए स्पेसिफिकली इस्लाम को शामिल किया गया। बट नेपाल भी अपने आप को हिंदू कंट्री डिक्लेयर करता है और श्रीलंका जो अपने आप को बहुत कंट्री डिक्लेयर करता है, तो सेम सिचुएशन वहाँ पे क्या लगता नहीं आपको कि मुस्लिम्स के साथ भी हो सकती है? तो सर उस केस में मुझे लगता है कि कोई प्रताड़ित है और वो भारत में रह रहा है 11 वर्षों वाला, तो 11 वर्षों वाला प्रोविजन उनके लिए अभी भी एप्लीकेबल है, तो उसको हटाया नहीं गया सर, ये एक्स्ट्रा संशोधन है। ठीक है, आपके सामने एक सिचुएशन है। चलिए पहले आप ये बताइए कि हम आपको एज ए SDM क्यों सिलेक्ट करें? आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है, क्या ऑल क्यूज हैं जो आपको और कैंडिडेट से अलग करती है और हमें आपको एज ए RA सिलेक्ट कर लेना चाहिए? सर, मैं अपने आप को एक लाइन में डिफाइन करूं तो आई एम अ पर्सन हु इज ड्रिवन पावर्ड बाय इंटेलेक्ट एंड ड्रिवन बाय वैल्यूज। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन के लिए टेक्नोलॉजी के समावेश का कैसे किया जा सकता है और कैसे उन्नयन हो सकता है, इससे रिलेटेड मैंने 9 सालों में सीखा है। मैं टीम को लीड करने में अपने आप को काफी प्रभावी मानती हूँ और मैं मानती हूँ कि जो मैं कहती हूँ मैं उसको करके दिखलाने वाला व्यक्ति हूँ। तो और एम्पैथेटिकल नेचर मेरे में है। ठीक है, आपके पास एक सिचुएशन है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, मान लीजिए आप SDM है कहीं पे, इवन आप पिलानी में SDM है,
और आपको जी। इंफॉर्मेशन मिलती है कि कम्युनली सेंसिटिव प्लेस है जहाँ पे कम्युनल टेंशन बढ़ सकते हैं, एक जी। सिचुएशन ये है। साइमल्टेनियसली आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से ग्रामीणों ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया है और वहाँ पे जो लोग हैं काफी इकट्ठे हो गए और वायलेंट हो सकते हैं। तो आप अपनी जी। फिजिकल प्रेजेंस सबसे पहले इन दोनों प्लेस में से कहाँ देंगी और दोनों सिचुएशन को साइमल्टेनियसली कैसे टैकल करेंगे? सर इस मामले में मैं ऐसा सोचती हूँ कि जहाँ बालक से रिलेटेड दुर्घटना हो चुकी है, तो अभी तक तो मैं उसकी सिचुएशन को ऐसे पूछना चाहूंगी कि वहाँ बालक को क्या एम्बुलेंस की सुविधा मिल गई है क्या, यदि हाँ, बिल्कुल वहां से रास्ता क्लियर करने का इशू है यस तो यस वहां तो मैं चाहूंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट जाए और वो उनको रास्ता क्लियर करवाने की कोशिश करे। लेकिन जहाँ कम्युनल हार्मनी होने वाली है, मुझे लगता है वहां मैं अपनी प्रेजेंस से लोगों के साथ संवाद करके ज्यादा अच्छे इम्पैक्ट ला सकती हूँ। लेकिन इसमें सेकेंडरी फैक्टर यह भी है कि डिस्टेंस कहाँ है। तो मुझे लगता है कि यदि अप्रोचेबल, मैं अपनी करंट लोकेशन को भी देखना चाहूंगी कि अप्रोच पहले कहाँ की जा सकती है। यदि दुर्घटना वाला स्थान मेरे रास्ते में ही आता है तो ऑफकोर्स वहां से होते हुए मुझे आगे जाना चाहिए। लेकिन यदि ऑलमोस्ट इक्वल है तो सर्टेनली मैं कम्युनल हार्मनी वाले प्लेस पे जाना चाहूंगी। ठीक है मुक्ता जी, आपका इंटरव्यू यहाँ ओवर होता है और आपका फीडबैक एक आपको दिया जाएगा, इसके लिए आप कोऑर्डिनेटर सर से संपर्क कर लीजिएगा। जी सर, थैंक यू सर। गुड लक, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर।